Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very special good afternoon to everyone. Just joining three different social media platforms today for this inaugural clash of Parigama Premier League. Talking about the toss by the local team Fida 11 Parigam, and they are bowling first, letting the guest team Arkelani Chakral to bat first, and we're done with the first ball. Shafkat and Rizwan are out there in the middle, top rate with the bat. And it goes bang! Second ball! Is it going to be caught? No! Just the fielder could watch the ball sail all over his head. It's gone for six. What a start! A dream start to this Arkelani Chakral. And Shafkat, just known for hitting those mega blows. That is definitely what we call a dream start. And Umi will have to really look forward for his close line. Flicks! Is the ball going to carry all the way? No. Skrellig waiting for the catch, and he catches it. So the first blow for the sides of Arkelanichek. And it's Umi who strikes, but I guess it's not the fault of that batsman because he just went long for that wristy. And eventually, already a fielder posted on that deep Skrellig, and he catches it beautifully. And Fida 11's Parigam now got the first wicket, the first fish. A Shafkat who goes, caught a deep Skrellig on the ball 3 of the first over, out for 6. And Arkelanichek, they are 6 for 1. We are providing you this live streaming from 3 different media platforms, like Baba Nisar Sensation, Kongpo Sports Glory, Sports Tadka as well. And indeed, this is Parigam Premier League, a mega event in its grand inauguration. And the man in green, they will have to really look forward because local team, just a lot of hopes. And the crowd here, that is something what we call a perfect picture of atmosphere. Good ball. Pass it Chotu, the new man out there with jersey number 02. But Umi bowls quite well. And if you see, the crowd just comes here in huge numbers, especially those school kids. It's a winter vacation going on these days. And as the time progresses, I assure you one thing, there will be a packed stadium at this MCG Parigam. Up here, just short of that mid-wicket. And you could see that non-striker, he was just diving and dying for come onto the crease, but his partner not responding well. Well, this is something what we call a real battle of pride. Arkelanichek, very dominant side for playing these kinds of cricket tournaments. Recently the champions of that Batagon Premier League Season 5. With soft hands into the play, guides it quite well, bisects the slips in the keeper, and the ball goes down to the fence for 4 runs. And he opens his account as well, Vasu Chotu. And the score of the side, Arkelanichek goes on to the double figures. It's 10 for the loss of 1 wicket. And in the meantime, the ball gets retrieved. We have got a couple of commentators today. To my right, I've got Sports Tadka, that's Clan Mushtaq. To my left, we've got Kongpo Sports Glory, we've got Umar Ashraf, and we've got a guest commentator as well, Mr. Azad Sob. He hails all the way from Chodura district, Budgam, so we will also have him in the box, and he also shares his experience. But crowd, atmosphere, the energy, the excitement, this is something what we call all passionable. And it's going to be 10-over format cricket contest, inaugural clash of Mega Premier League, that's Parigam Premier League. Still some entries left. You can go to the captions and you will get the numbers of Basit Gulzar, the chief organizer. Umi, rather change in bowling, it's Yasin. Oh, lovely shot, glorious upish, has it carried all the way, yes! The umpire signals with both his hands up in air, just a half volley to the man. And just playing too much of cricket should not be a tough job for him.
What a dream start to this man, Rizwan. 6 on the first ball. I would love to just get a total of around 100 plus, as the captain did mention on the toss. And drifting down the leg, there you go. Signal comes from the umpire. It's a wide ball. So the first extra. And I would love to introduce to you my fellow commentator to my right. That is Saqlain Mushtaq, who just runs his page Sports Tadka. Saqlain, you believe local team Fida 11 Parigam winning toss and just opting to bowl first so far? The decision goes quite right because they have picked up the big man pretty early in the first over of the power play. बिल्कुल, एक विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं और 16 बोर्ड पे है और यासीन चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ, और इस गेंद पे कोई रन आएगा नहीं और चाहेंगे यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लक्ष्य उनके सामने न हो तो अच्छी लाइन पे आपको यहाँ से गेंदबाजी करनी होगी। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ बैटर्स की तो सोच उनकी होनी चाहिए, हालांकि विकेट ज़रूर गंवाए लेकिन इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाना चाहेंगे मुकर्रर 10 ओवर्स में। रिजवान के साथ साथ बासित अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं और यासीन गेंदबाजी कर रहे हैं। यासीन चले एक और गेंद के साथ और ऑन साइड में खेलना चाह रहे हैं, क्रॉस बैट स्ट्रोक और गेंद और बल्ले का कोई भी मिलन नहीं हुआ। विकेट कीपर की तरफ गेंद गई, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। करंट रेट की अगर मैं बात करूँ 9.60 के आसपास और 10 ओवर में आप कम से कम यहाँ पे 100 तक ज़रूर पहुँचना चाहेंगे। क्या वहाँ तक पहुँच पाएगी टीम? काफ़ी दूर से आई खेलने के लिए और आज अच्छा करना चाहेंगे अपने यहाँ पे अपनी टीम के लिए और यहाँ से जीत हासिल ज़रूर करना चाहेंगे। मिड ऑफ पे खिलाड़ी को रखा है, मिड विकेट रखा है वहाँ पे, शॉर्ट लेग पे भी खिलाड़ी और एक शॉर्ट थर्ड पे भी खिलाड़ी को रखा है। हाँ, इस बार खेला है और उसकी तरफ रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं और रोटेशन भी करना ज़रूरी है। छक्कों चौकों की गेम है नहीं, आप रोटेशन भी कर सकते हैं क्योंकि स्कोरबोर्ड चलता रहेगा उतना फिर आप पे दबाव ज़्यादा आएगा नहीं। सोच वही होनी चाहिए दोनों बैटर्स की। 16 खिलाड़ी के नुकसान पे 1.5 के बाद यासीन ने 6 ही रन कंसीडर किए इस ओवर में। जो 2 खिलाड़ी बाहर रखे, एक स्क्वेले को पीछे किया है और एक लॉन्ग ऑन रखा है। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते हैं। इस गेंद पे कोई रन आए नहीं, 2 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं। 2 के बाद 16 एक खिलाड़ी के नुकसान पे। I would say it's completely very good dominant start, because just going 8 runs per over, still you know that you have got the good depth in the batting alongside this Arkelani Chektral. But what actually makes or pushes me to just get why this team looks to me a strong, a dominant side, because they play a lot of cricket. They have been used to this kind of format, being the champions of Batagon Premier League as well. So this is something where it will push them through. This will be just making them feel a bit more confident enough just playing in the inaugural clash of this Parigam Premier League. So I believe if they just still go on with that kind of momentum, more than 8 runs per over, this will get them to 90 or 100. And having 100 plus runs on the board in that legitimate 10 overs, I believe, Umar, who is just one more commentator with us, sitting to us left in this very commentary box. Umar, you believe more than 100 runs, Arkelanichak, they're never going to let it easy because they're the dominant side when we talk about this very shorter format of T10 cricket tournaments. अस्सलामु अलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं एक बार फिर यहाँ MCG पारीगाम पुलवामा से डिक्सन बॉल मेगा इवेंट पारीगाम प्रीमियर लीग पहली बार एडिशन फर्स्ट 64 टीमों पर मुश्तमिल है एक मेगा इवेंट। एंट्री जोन है, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का और मेरे साथ बाबा निसार, उसके अलावा सकलैन मुश्ताक निकस बॉय फ्रॉम निकस पुलवामा, स्पोर्ट्स तड़का, बाबा निसार सेंसेशन और कुंग पोस्ट ग्लोरी पर ये इनॉग्रल मुकाबला आप देख रहे हैं HD क्वालिटी के साथ। अगर मैं टॉस की बात करूं तो टॉस हो चुका है, जैसे कि बाबा निसार और सकलैन ने बताया कि टॉस जीतने के बाद आकिब यूनिस द कैप्टन ऑफ फिदा 11 पारीगाम, होम ग्राउंड है उनका, उन्होंने चेज करने का फैसला किया। अगली गेंद उठाकर मारा है इसे, ये बासित का शॉट मिड विकेट पे थोड़ा सा मौका बना था मोहसिन नजीर के लिए दौड़ लगाते हुए। अगर मैं मोहसिन को देखूं, लेदर में बड़ा होनहार वो क्रिकेटर है और उनके इख्तियार में ये था, वो कैच कर सकते थे लेकिन थोड़ा सा दूर रही उनसे गेंद।
और ये पहला छक्का निकलता हुआ बासित के बल्ले से। और आरके लाइंस चक जो कि एक स्ट्रॉन्ग टीम है, हाल ही में उन्होंने बटकुंड प्रीमियर लीग का 6th एडिशन अपने नाम कर लिया, तो कॉन्फिडेंस इस टीम का हाई है। बासित, छोटू और रिजवान, ये रिजवान के साथ ना शफकत आए थे आज, लेकिन शफकत आउट हो गए। 22 है स्कोर इस वक्त और मैदान के अंदर काफ़ी भीड़ है तमाशाइयों की। लोग आए हैं इस इनॉग्रल मैच को देखने के लिए एक अच्छी तादाद में। जहां मेरी नजर जा रही है वहां लोग ही लोग दिख रहे हैं। इस बार भी गई है लॉन्ग ऑफ के बाहर, उड़ती भी तैरती भी 6 नंबर सेकंड फॉर बासित छोटू। कमाल की बैटिंग करे बासित। Well, indeed, he looks quite great. He looks quite strong. You know, you could see 2 back-to-back sixes. There you go. Just looks a bit defensive approach as well. But if you look at the number of runs so far post on the board, 28 for the loss of 1 just in the 3rd over now. The run rate looks creeping. It is just over 9 runs at this moment. I believe Arki Lions, Czech Thrall will be quite happy with the way things are going. Another good ball just hits in his ribcage. Will be just bouncing there, not going for the runs. 3 overs gone with the help of no extra there. That's been completely disciplined. They're 28 for the loss of 1 wicket. And quite good venue, MCG Parigam, hosting this Parigam Premier League Dixon T10 knockout cricket tournament, 10 overs format, 64 teams. And indeed, you know, when we talk about the passion of the people for watching this game, it's really, you know, off time these days. Especially you talk about the educational institutions and especially the school kids, I could see enjoying this cricket action at this venue of Parigam MCG. 28-3. Shilakam Badal. And even though there is an issue of Iran, but that is sorted now. So I was talking about the real taste. Talking to the organizer, there was no cricket being played in this Parigam for the last couple of years. And as we already know, there aren't that kind of, you know, availability, that such availability of time. So better to try and start this very shorter format. And lots of appreciation to Basit Gulzar, the chief organizer of this Parigam Premier League. 64 teams, a mega event, and just kicking quite at a nice note, you know, with the guest team hailing and coming all the way from Thrall Pulwama, the recent champions of Batagun Premier League, and just outplaying, displaying some good character when it comes to play, that power play. And this is what we call the real dominance, sheer dominance. And with power play done and dusted, let's see. We still go and carry with a slips, a gully in place, a backward point, a deep covers, a long off, long on mid-wicket. And this is Apesh. Finally comes underneath and he catches it. It's Rizwan who goes and Umi strikes. Rather, it's Umi who is the catcher. It's Sean Umar who is the new bowler introduced. Arke Lions with number 2 down. And it's 29 for 2 now. Ultimately, local team Fida 11 Parigam not giving up. They're giving what we call a real fight to the likes of the recent champions Arke Lions Czech. इससे पहले भी कोशिश की थी, ज़्यादा क्रॉस बैट स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे और आउट हो गए। यहाँ पे सोच होनी चाहिए, जितना स्ट्रेट बैट से खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन T20 की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम आप देखते हैं क्रॉस बैट स्ट्रोक ज़्यादा खेले जाते हैं और ताकि वो रेंज उस प्रकार की मिले। और यहाँ पे अपना विकेट गंवा दिया है। 29 पे लगता हुआ दूसरा झटका, 3.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी उम्मीद को मिलती हुई सफलता यहाँ पे। और इस विकेट की ज़रूरत थी यहाँ पे इस टीम को। आप देखने वाली बात होगी कि कौन आएंगे अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। सोच होनी चाहिए यहाँ से कि अब लगातार रन्स बनाना चाहेंगे ताकि करंट ट्रेंड को आप अच्छे से मेंटेन करें और फिर एंड में अगर 2-3 ओवर्स में आप फिनिशिंग टचेस देंगे तो आराम से आप 100 तक पहुँच जाएंगे। सोच वही होनी चाहिए।
उम्मीद को मिलती हुई सफलता। अब नए बैटर आए हैं, लोन वसीम आए अब यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए। चले उम्मीद इस ओवर में एक और गेंद के साथ उठा दिया इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से और गेंद बॉडी लाइन से बाहर 6 रन खेले जाएगी। शानदार शॉट और ये इंटेंशंस क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटेंशन सेम होने चाहिए यहाँ पे, हालांकि विकेट आप जरूर गवाएंगे T10 में, लेकिन सोच होनी चाहिए लगातार अटैक करने की ताकि आप मुकर्रर 10 ओवर में 100, 110, 120 तक पहुंच पाए। सोच वही होनी चाहिए। और 35 पे 3.2 ओवर के तक गेंदबाजी हुई है। इस बार नीचे रही गेंद, फिर से इंटेंशंस वही थे ऑन साइड में खेलने की, गेंद की कवर्स की तरफ। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदल 35, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और करंट रन की अगर मैं बात करूँ ना 10 के आसपास है। पहले गेंद पे अपने विकेट हासिल किया, उसके बाद छक्का गया, अब वो डॉट गेंद नजर आई। उम्मीद की अगर मैं बात करूँ 6 रन अभी तक कंसीडर कर चुके हैं, विकेट एक जरूर हासिल की है। चले और गेंद के साथ इस बार फटने के बाद काफी अंदर आई गेंद, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। तिरछे बल्ले से इस बार खेलना चाहते गली की तरफ, लेकिन मिलन हुआ नहीं बल्ले का और गेंद विकेट की कीपर की तरफ गई। रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं। स्कोर बदस्तूर 34, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। 3.4 के बाद। और बासित की अगर मैं दूसरा इनसे बात करूँ ना, बैट स्विंग बहुत बढ़िया नजर आ रहा है उनका और एक्सपीरियंस साफ तौर पे नजर आ रहा है और कॉन्फिडेंस बहुत कुछ कराता है जो कॉन्फिडेंस लेके आया आज मैदान में। इस गेंद पे भी कोई रन नहीं और उनके शॉट्स काफी कमाल के थे। हालांकि इससे पहले भी जो छक्का लगाया था वो देखने के काबिल था, लेकिन उससे पहले अगर मैं बासित की बात करूँ उनकी शॉट सिलेक्शन डिफरेंट नजर आ रही है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। Absolutely, that's what experience is all about, when you switch to the shorter format of the game, but you got to be quite flexible, and this is what we have so far witnessed from the likes of Basit Chotu. Tries to swing it onto the onside, not carrying that proper control. So Glenn, I would love to know from you, being the commentator and analyzing the game quite close and proper, how difficult it looks to be for the batsman to switch from one format to the other format, because you talk about this Dixon T10 shortest format of the game. Is it really a bit challenge for the batsman to really get into that proper prospect? Because to me it's really an uphill task for a batsman to settle things quite normally, because you are not allowed with the proper amount of time. बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। एडजस्टमेंट्स करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी बैटर के लिए, चाहे आप T20 खेल रहे हो या कभी कभार 30 ओवर्स का भी मैच होता है तो आसान होता नहीं है। लेकिन एज ए बैटर प्लस पॉइंट आपके पास तभी रहता है जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस हो, वो एक अच्छी बल्लेबाजी हो सकती है। इससे पहले वाले मैचेस में अगर आपने की हो तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप मैदान में उतरते हैं ना तो फिर वो काफ़ी काबिल तारीफ बन जाता है आपके लिए। बहुत ही अच्छा बनता है आपके लिए। सोच वही होनी चाहिए हर किसी बैटर की। अगर मैं बात करूं आप तभी एक अच्छे बैटर माने जाते हैं जब आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। किसी भी फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट्स करेंगे ना तो फिर आपकी टीम के लिए बहुत बेहतर होता है। इंतजार उठा दिया है, फ्लिक ऑफ द रिस्ट नजर आया, खिलाड़ी पीछे जा रहे हैं और पकड़ लिया है और बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है। इस बार रिस्ट वर्क ज्यादा दिखाना चाह रहे थे लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग में जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके हाथ में गेंद चले गए और आउट हो गए और लगता हुआ ये बड़ा झटका है इस टीम को लग सकता है। Well, this is big fish. This is truly a big fish. His Basit Chotu has been caught at the deep square leg. It's another big blow. And Yasin is bowling superb line into second, has got the big one, the big wicket, the priced wicket I would say. And now is it going to just make RK Lyons check throttle, just go and just get under some pressure situations, because your 3 top order batters are back to the pavilion. And even though there are runs on the board, but remind you, you're in the number 5, 4.1 overs have been bowled in Fida 11 Parigam, the local team of Parigam Pulwama. They are doing some absolute things in this inaugural clash. And to my left I've got Umar Ashraf, the very chief of Kongpo Sports Gallery. We'll have to know from you, Umar, you believe local team Fida 11. It was talked, it was talked a lot. It was just, mentioned a lot that RK Lyons check, they might be looking dominant right from the power play, but their situation that's gone completely reverse. तो अभी तक पहला बैटिंग करके टॉस हारकर आरके लायंस चेक की टीम, जो कि एक स्ट्रांग टीम है डिक्सन बॉल की, 34 रन बने हैं, बल्कि 35 हो गया स्कोर और 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अभी तक आउट हुए हैं। तो कहना चाहिए अच्छी बॉलिंग हो रही है फिदा 11 यहाँ की जो लोकल टीम है। खासकर अगर मैं यासीन की बात करूँ तो यासीन एक तगड़े ऑलराउंडर है। इस बार लगभग चौथे स्टंप पर जाकर गेंद को निकाल दिया, बहुत ही बढ़िया गैप देखते हुए। और T20 में या T10 की अगर मैं बात करूं निसार साहब,
ये स्ट्रोक्स हम अक्सर देखते हैं। चालाकी आई है काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट में। क्रिकेट जेंटलमैन इसका गेम है, लेकिन अब वो अगर शॉट्स की मैं बात करूँ या बॉलर है जो आजकल बड़ा वेरिएशन करते हैं T10 या T20 में, बड़ा ज़बरदस्त ये स्ट्रोक था, इसीलिए अब फाइनल लेग को डीप में रखा है जहां साकिब मलिक नजर आ रहे हैं। फॉरेन से अगली गेंद, इस बार भी लगभग लेग साइड ही अदब बनाया था। लोन वसीम बैटर आए हैं एजाज अहमद के साथ, तो लग रहा है अभी तक ये कंट्रोल में पहली इनिंग ठीक ठाक गेंदबाजी हो रही है। फिदा 11 पारीगाम जिसके कैप्टन आकिब यूनिस ने टॉस जीता, लेकिन उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला किया। होम ग्राउंड है उनका, उसका थोड़ा सा वो फायदा ले लेंगे जरूर, लेकिन क्राउड को देखते हुए यही लग रहा है कि यहाँ काफी ज्यादा लोग आए इस मैच को देखने के लिए। एंट्रीज अभी भी ऑन है। अगर आप इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं 5000 इसका फी है। 64 में खेल रही है, अभी भी एंट्रीज कुछ बची हुई है 10-15, लेकिन अमाउंट जो है विनिंग वो एक जैकपॉट अमाउंट है। 1.5 लाख के आसपास आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा अगर आप विनर रहते हैं। उसके बाद रनर्स के लिए 50,000। ये पॉइंट पर ही फुल टॉस पर आउट हो गए। 1 ब्रिंग्स टू यासीन ने इस ओवर का आगाज विकेट के साथ किया और इख्तिताम भी विकेट के साथ किया, और इसी के साथ ये 39वें आरके लॉयंस शक की टीम ने चौथा विकेट गंवा दिया है। तो ताश के पत्तों की तरह विकेट्स गिर रहे हैं और दबाव काफी ज्यादा है आरके लॉयंस शक की टीम के ऊपर। यक्के में दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं और ऐसे में खुश लग रही है टीम फिदा 11। उनके फैंस जो होम ग्राउंड में इस मैच को देखने के लिए आए हैं, चाहे मैं छोटे बच्चों की बात करूं, बुजुर्गों की बात करूं या नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। और इस समय सारा का सारा क्रेडिट यहाँ की मैनेजमेंट का जाता है, पारीगाम क्रिकेट एसोसिएशन जिसके चेयरमैन बासित गुलजार साहब है। 5-1, 39 for the loss of 4 wickets. This makes the half team back to the pavilion. You know, you could see the half of the stage we're through with the overs, the half of the wickets we're through with the playing 11. That's of Arkelina check. So now it's a bit of test of the skills of the middle order phase of this very side of Arkelina check. So is it that expectation is what have been raised on to you as a team? You know, already the recent champions of Buttagon Premier League getting here into the inaugural clash of this Paregam Premier League, not starting quite well. You know, you are being dominated by the opposite side, that too, the local side of Fida 11 Paregam. So let's try and know it from you, Umar. You believe, is local support always going to produce something at the back of you as a team when you get, swings it. There is a mid-wicket player. And he will get to the stop of the ball. Meanwhile, they are through for a single. Ejaz, and he is being joined by the new partner Yasir Altaf. So I was talking about local support of Fida 11 Paregam. And you talk about Paregam village. It's called as one of the biggest villages of district Pulwama. You know, known good for its education, known good for its employment rate as well, and known good for its sports. Almond also. And also known for its almond cultivation. Very good dry fruit, good for health as well. Yes. But talking about the sports, we have seen some good players being emerging from this very vicinity, big village of district Pulwama, Paregam. But talk about the local support. Fida 11, they're dominating the side. Very inaugural clash. 40 पर है 4 आरके लॉयंस मेहमान टीम, और गेंदबाजी में अब साकिब मलिक आए हैं अपने स्पेल का पहला ओवर डालने के लिए। कि बाहरी किनारा लगा, गेंद पहुंची आकिब यूनिस को बीट करती हुई स्लिप में सीधे थर्ड मैन बाउंड लाइन के बाहर। तो बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है फिदा 11 पारीगाम के बॉलर्स की तरफ से। अच्छा खासा सपोर्ट उनको मिल रहा है, जैसे कि निसार साहब बता रहे हैं, और उसका फायदा वो ले रहे हैं। और होम ग्राउंड पर उनको अच्छा फायदा मिल रहा है, क्योंकि बचपन से ही यहाँ ही उन्होंने क्रिकेट शुरू की है, क्रिकेट का आगाज। और लेदर के अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूँ इस इलाके में तो काफ़ी सारे हैं बिहाइंड द विकेट्स। खुर्शीद मीर जो कि बड़ा ज़बरदस्त खेलते, कलाइयों में काफ़ी जान है, लेदर बॉल के एक होनहार क्रिकेटर, एक डैशिंग ऑलराउंडर, और गेंदबाजी भी काफ़ी अच्छी करते हैं। उसके अलावा मोहसिन नज़ीर, अगर मैं यंग क्रिकेटर्स की बात करूँ तो उनमें ये बडिंग क्रिकेटर है मोहसिन नज़ीर,
उसके अलावा यासीन ने तो आज बता दिया कि वो किस कैलिबर के बॉलर है। यासीन ने एक ओवर में 2 बड़े क्रिकेटर्स को रवाना किया और क्रीज पर अब यासिर अल्ताफ और एजाज बने हुए मिडिल में बैटिंग कर रहे हैं। 44 है स्कोर, 7.76 रन बनाने की औसत। लेंथ आ गई थी जरूर और इसे लगभग मिड विकेट के ऊपर से मारने की कोशिश की थी। बहुत तेज ये गेंद थी साकिब मलिक की और अच्छा गेंदर विकेट के पीछे। हाँ, विकेट के पीछे बैठने का स्टाइल अनोखा है खुर्शीद मीर का। तो फील्डिंग की अगर मैं जमावट की बात करूं, एक मिड ऑन डीप है, मिड विकेट भी पीछे है उमैर के रूप में। यह फिर से गई गेंद इस ओवर में दूसरी बार स्लिप और थर्ड मैन फील्डर के बीच में। ये दोनों बार थर्ड मैन अंदर था इसीलिए गेंद बाहर। दूसरा चौका ओवर हुआ फिंच चौके के साथ। तो 6 ओवर के बाद लक भी फेवर में नजर आ रहा है इस ओवर में आरके लायंस के लिए। और मिडल में किस तरह की अब बैटिंग करेंगे इनके बल्लेबाज, हालांकि टॉप ऑर्डर तो अभी तक फेल हुआ है। इसमें बासित छोटू जिसके ऊपर काफ़ी नजरें थी, उनका बड़ा ज़बरदस्त कैच स्क्वायर डीप में लिया गया था। एंट्रीज के लिए आप कॉल करें, यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स हमने मेंशन कर दिए हैं। 6 ओवर के बाद 48, 4 विकेट के नुकसान पर। तो मैं समझता हूं कि अब यहां से यासिर अल्ताफ और एजाज को ना लगभग हर गेंद पर स्कोर करने की जरूरत है, क्योंकि ओवर सब बचे हुए केवल 4। Indeed, that's a need for them because only left is 4 overs. I believe they gotta try and just send their bat to every ball come their way. Ejaz and Yasir Altaf. Let's see. Ejaz is taking his start. He's batting on 2 of 2. Yasir is batting on 8 of 5. And Mohsin Nazir now has a new change into the attack from Fida 11 Parigam. And he's going to bowl from that cliff end. He goes. First ball. Good ball. Just keeping low. Not having that proper connection. And as my fellow was mentioning about Mohsin Nazir, he looks to me quite a great pace when it comes to bowl that leather cricket. And is a very great all-rounder. And in the meantime, the ball has gone past and beaten that wicket keeper. I'm not pretty sure whether the runs will be counted or not, and no signal and no confirmation from the umpire. But I believe the plan of RK Lynchuk should be to try and get more than 80. Yes. Because you have 8 runs per over. You believe that more than 80 is something where you can create a game. Can just create some chance. And he goes. Lovely shot, but there's a fielder waiting. Catches it brilliantly. It was only the sound, only elevation, not the distance. And what we were appreciating Mohsin Nazir, he has given up and showcased really what he delivers. A perfect ball. And the batsman was not able to just get that proper control. Caught brilliantly at the long on. So one more bites the dust. And the tally of the wickets goes to, I guess, 6 now. It's 48 for 5. 48 for 5, beg your pardon. And eventually, this is making this very RK Lynchuk, more onto the back foot. Having their top order now, middle order getting exposed at this very inaugural clash. Well, you would have never believed, the same would have never been believed by this like of a champion side. But that's what T20 shorter format of cricket is. It doesn't give you that proper time to stabilize your situation. It doesn't allow you to just take your time and implement on the crease and to just offer your shots. You gotta come up ready and prepared on the very first ball. First ball he goes, swings it down. It's Hilal, the new man, down to the long on. He gets the first ball and he gets off the mark as well. Score goes on to 49 with half the team back to the pavilion. There is slips in place, a gully. There is a deep covers. There is a short covers, a long off, long on, mid wicket. Very good ball again. Not handled quite well by the keeper. And no confirmation of runs anymore. So 49 for 5. Last ball of the 7th. And MCG Parigam just holding and hosting this very Parigam Premier League. All about to this inaugural clash. This is some brilliant cricket being played out here. Mohsin Nazir, he has got already a wicket. He has been quite phenomenal. Just 1 run he has considered of his first 5 balls. Yasir waits.
And is he going to send it down for some half dozen? Waits. Oh, good ball again. Just hits the deck hard. Had to take his eyes off the line. That marks the end of over. So we're done with 7. It's 49 for the loss of 5 wicket. And we're being joined by a new commentator, a guest commentator in the commentary box all the way from Chadura, District Budgam, Mr. Azad Soap. So we welcome him in the commentary box. Azad, thank you very much for joining us. And how do you see this game now? 49 for 5. RK line check looking dominating, but they are being dominated quite well by the side of the local team. That's Fida 11 Parigam. अस्सलामु अलैकुम एंड थैंक यू बाबा साहब, सकलीन भाई एंड उमर भाई, मुझे मौका देने के लिए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है कमेंट्री करना, लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो मेरे ख्याल से जो RK लाइन चक है शायद ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम पीछे से टूर्नामेंट जीत के आए हैं। उसी वजह से हर एक खिलाड़ी जो बैटिंग करने आ रहा था सब अक्रॉस द लाइन जा रहे थे खेलने, लेकिन ये T10 एक ऐसी गेम है यहाँ पे बैट्समैन को सेटल होने नहीं देता है। मतलब चाहे हम T20 की बात करें या फिर अब इससे शॉर्टर फॉर्मेट की बात करें, लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर हमें मतलब इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि अगर बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं हम चलो इक्का दुक्का में काम चलाए, स्ट्राइक को रोटेट करें। लेकिन मैं अगर कश्मीर की बात करूँ पर्टिकुलरली, हमें ऐसे खिलाड़ी, चाहे हम T20 की बात करें या फिर T10 की बात करें, ऐसे खिलाड़ी बहुत कम देखने को मिलते हैं जो स्ट्राइक रोटेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम पहले मैं मैच देख रहा था, जम्मू में मैच चल रहा था, वहाँ पे 105 था टारगेट। आई थिंक WCC लोलीपुरा का मैच चल रहा था। वहाँ पे लास्ट विकेट पे WCC लोलीपुरा ने मैच जीता, बट कुडूस तो वही तीली वहाँ पे खेल रहे थे। एंड तक उसने रोटेट करके मैच को लिया। लेकिन एक अच्छा क्रिकेटर, एक परफेक्ट क्रिकेटर मैं उसको बोलूँगा जो ज़्यादा फोकस छक्के मारने पे नहीं करेगा, क्योंकि 6 तो स्लॉगर भी लगा सकता है, मतलब टेलेंडर भी लगा सकता है। लेकिन बीइंग ए प्रॉपर क्रिकेटर यू हैव टू वॉच क्रिकेट, टाइम द बॉल, पर्टिकुलरली इन T20 क्रिकेट। यहाँ पे एक तो दोनों चीज़ें करने, एक तो छक्के भी लगाने और स्ट्राइक भी रोटेट करने, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। साकिब मलिक 10 रन दिए इसने, और RK लाइन चेक 50 पे 5, 7 ओवर 2 के बाद। इसी बीच उठा के मारा है पॉइंट के ऊपर से, एक और चौका। और मेरे हिसाब से बाबा साहब, अगर मैं इस पिच को देख रहा हूं तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि 70-80 इट्स अ गुड टोटल ऑन दिस विकेट, बिकॉज एक तो बॉल राइज भी हो रही है और दूसरा कभी कभार बॉल नीचे भी रह रही है। मतलब 80 मेरे ख्याल से लग रहा है कि एक कॉम्पिटिटिव टोटल होगा, क्योंकि चेज़ करना आसान ही होता है। वो भी इनॉग्रल क्लैश है, मतलब भीड़ भी एक बहुत बड़े क्राउड के सामने, मतलब एक चेज़ करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जिस हिसाब से पिच खेल रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है 80-75 स्कोर ये 10 ओवर में ठीक है। Absolutely, and that's what we were mentioning as well, as the game started, because I would also just add one more to your explanation, the dimensions of the ground. Yes. We saw Basit Chotu, it's up, caught, one more bites the dust. And in the meantime, a signal comes from the umpire, it's a no ball. Oh no, what have you done, Sakim Malik? Is it going to come up as a suicide for your team? It will be a license to the man to free his arms and send the ball down to the orbit Parabigi. He guides it well, waits and cuts well. There is a deep third man in position, I believe. A bit of a fumble, and in the meantime the ball rises and topples over the fence. 4 runs. And very good attack on that license. Having license to you as a batsman, you can hit it where you want it. And just coming to that target of around 75 and 80, because we could see Basit Chotu, we could see that Shafakat, we could see that one more batsman. They're known for hitting those big shots, but still they were caught on the verge of those boundaries. So this actually indicates that hitting sixes, hitting big shots at this venue is never gonna be an easy. So you gotta be quite practical, you gotta be quite temperamental, you gotta be quite solid with your running between the wickets,
Even though this format just suits you if you are quite, big striker of the ball, but the situation one just traps you under those circumstances where you got to look forward those runs and twos in between the wickets as well. So Umar, what do you reckon? You believe that hitting six is not easy job at this venue of MCG Paregam. You got to look forward for those quick runs between the wickets as well. 8 ओवर के बाद 60 रन और आर के वाइनशक का है स्कोर। 7.5 की औसत से रन्स बन रहे हैं। हिलाल 6, यासिर 13। अब गेंदे बची हुई 12। और अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं, जैसे कि निसार साहब बता रहे हैं, बड़े डायमेंशंस हैं। और ये T20 फॉर्मेट आजकल टाइम काफी तेज क्रिकेट है, फास्ट क्रिकेट है, लेकिन आज के टाइम पे भी कुछ गेंदों को ना संभल कर खेलने की जरूरत है। हर बॉल पर आप हिट नहीं कर सकते हैं। और इस समय बॉलिंग करने के लिए फिर से मोहसिन ही आए हैं और मोहसिन कोशिश करेंगे इस ओवर में कम रन कंसीड करने की। और वही अगर मैं यासिर की बात करूं तो देखिए, अब तो रन्स बनाने हैं। 20-25 अगर बन गए तो 85 बनेगा, अगर 30 फिर 90, उससे कम मैं समझता हूं कि 70 अगर बन गए या 75 तो फिदा 11 के लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। होम ग्राउंड है उनका, अच्छे क्रिकेटर्स इस टीम में खेल रहे हैं। लेकिन अगर 90 रन बने तो मैं समझता हूं फिर एक टफ टास्क हो सकता है वो। ये लगभग टांगों पर गेंद थी और इसे फाइन खेलते हुए फाइन लेग फील्डर के ऊपर से खेला है जानबूझकर, और ये चौका मिलता हुआ इस ओवर का पहला। और यासिर अब 17 पर पहुंचे हैं 13 गेंदें खेलकर। यासिर कोशिश कर रहे हैं स्कोर करने की ज्यादा से ज्यादा। प्रोजेक्टेड स्कोर 77 दिखा रहा है अगर ये औसत बरकरार रही। अब गेंदें 10 बची हुई है यहां से और यासिर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। मोहसिन की तीसरी गेंद का ओवर द विकेट, क्रॉस द लाइन, लेग साइड का हद बनाया था। हर गेंद पर आप लेग साइड पर स्ट्रोक नहीं लगा सकते हैं। जिस तरह से आजाद बता रहे थे कि टाइम करना पड़ेगा आपको। अगर आप गेंद को गैप में खेलते हैं, डायमेंशंस काफी बड़े हैं, आप सिंगल को ना डबल में भी कन्वर्ट कर सकते थे। शुरुआत में वो लेग हमें देखने को मिला, उसकी कमी देखने को मिली। और जितने भी बल्लेबाज अभी आउट हुए ना, बड़े हिट्स पर आउट हुए हैं। मोहसिन लंबा रनअप है, ये बल्ले पर बैठी, हवा में उठी, फील्डर से दूर नहीं, कवर पोजीशन पर ही कैच ले लिया गया। यासिर अल्ताफ आउट हुए डीप कवर पोजीशन पर आकिब के हाथों, और मोहसिन को मिल गया दूसरा विकेट। और मोहसिन कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रही है। और ये विकेट नंबर 6 गिरा है इसी के साथ। अब जो क्रीज पर आए हैं ना बैट्समैन, ये तो एक होनहार फास्ट बॉलर है, इसको मैं बड़े टाइम से जानता हूं, मोहम्मद फैसल, एमडी फैसल। रफ्तार भी इनके पास अच्छी खासी है, उसके अलावा बैटिंग में भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना कंट्रोल में रखा है यहाँ की मुकामी टीम। फिदा 11 पारीगाम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर रही है अपने होम ग्राउंड पर, जहां क्राउड का एक सैलाब मुझे नजर आ रहा है। जहां नजर जा रही है वहां तमाशाई दिख रहे हैं। और ऐसे में काफी भीड़ है मैदान के अंदर तमाशाइयों की। मेगा इवेंट डिक्सन बॉल पारीगाम प्रीमियर लीग इस साल में पहली बार, बल्कि ये पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है। फैसल ने पुल करने की कोशिश की, टॉप पेज लगा, थर्ड मैन के फील्डर भाग रहे हैं गेंद के पीछे, थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया और गेंद निकल गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आते ही चौका लगा और कोई फर्क नहीं पड़ता है अब फैसल को इस वक्त, क्योंकि आखिरी ओवर्स, इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी है इस पहली इनिंग का। तो कोशिश हो रही है, ये दूसरा चौका इस ओवर का। 68 हो गया है अब टोटल स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। 8.5 के बाद आरके लायंस टॉस हार कर पहले बैटिंग कर रही है। ये बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और सिंगल ही मिलेगा। 9 रन बने इस ओवर में, विकेट भी हासिल किया मोहसिन ने।
9 के बाद 69 स्कोर। अब आखिरी ओवर बचा हुआ है निसार साहब, अगर इसमें 10 रन बने तो फिर मैं समझता हूं कि 80 रन्स होंगे। तो 80 रन्स अगर मिल गया टारगेट तो मजा आएगा। Well, indeed, but I'm still, if you could have watched me, I was brooding over deeply. I was contemplating quite deep about the timing and placement of those fielders. Even though you were talking about this man, MD Faisal, he is known for his genuine fast bowling, but you could see him also looking for those big and aggressive strikes. Just talk about the wide gaps you have on the onside as a right-handed batter. If you look the number of balls you have got left previously, just take them 12 balls. You could maneuver the ball. You could time the ball with soft touch. You could come up with a gentle push the ball. Still, you would be able to convert those runs into twos. You could run for 3, maybe some overthrows come your way. But the approach of the batter, just pushing themselves, always you got to believe in those big strikes, big sixes, and it's not going to come easy for you. As our fellow commentator, guest commentator Azad Saab was mentioning, that we always believe in being counted as some big strikers of the ball. There you go. This is also the problem, and this is something, if you are intelligent enough as a cricketer, just go to the international cricket. Even though there might be a lot of questions, comparing to this format, to that format, that was longer format of cricket, but any format of cricket you play, you never believe minor number of runs can come out and it can make the bigger number of differences in the results. And I believe Azad will just explain this thing in a quiet way. जी बाबा साहब, मैंने पहले ही मेंशन किया था कि छक्कों से तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि मतलब अभी भी मैंने आपको बोला कि टेलेंडर भी छक्का मार सकता है, लेकिन अगर इस इनिंग की बात करें हम, ऑलमोस्ट 20 to 25 बॉल्स जो हमने देखी वो डॉट हुए। अगर इन 25 गेंदों में इक्का दुक्का करके ऑलमोस्ट अभी स्कोर 100 से ऊपर चला गया होगा। लेकिन द वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, दैट इज कि ये जो विकेट है ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। ये खेलने के मतलब बहुत मुश्किल है इस पे चेज करना। एंड सेकंड थिंग दैट इज कि जो क्राउड है यहाँ पे उसका दबाव भी रहेगा, क्योंकि होम ग्राउंड है फिदा 11 पारीगाम के लिए। बाबा साहब, Indeed, one bounce and goes and passes that, long gone. And even though a 6 followed by a boundary, now this is what we were predicting. You go to 75 plus, you go between 75 and 80, and you are almost there with 3 balls to go. And Faisal is now playing a good knock. 15 of 5 is going with a strike rate of 300. That's what we call indeed the Fatafat cricket. T10 goes again. It's a leading edge. And enough time for the two batters to just change their ends. So they are exactly 80 on the board for the loss of 6 wickets. And they will be believing now they are in the very good conditions. It's a bit of a safe situation for them. Just talking about their approach and the bowling, they are very dominant, very experienced. And indeed, this might not be an easy chase for the local side of this very Fida 11 Parigam. A dot ball by Sean Umar, who is bowling his second. He has been a bit expensive. He has been among the wickets as well. 1 for 17. And let's see how many this man Hilal will count on the last ball. And the crowd, they are adding to the real spices of this inaugural clash of Parigam Premier League. They are enjoying on the top of the cliffs. Last ball of the first innings. And has he got some edge? And I believe the finger goes up. The wicket on the last ball by Sean Umar. They're 80 for 7, done with their innings of 10 overs. So target to be set for the local side of Fida 11 Parigam. That's going to be exactly 81. And Umar, I believe if you keep your nose, if you believe in your real strategies, if you believe in that running between the wickets, you still can win this match, because you just got to go with around 8 runs per over, and it's not a big deal. तो पहली इनिंग इख्तिताम को पहुंची और 80 रन बनाए हैं और कैरन शक की टीम ने, और इसीलिए अब 81 रन का है टारगेट फिदा 11 पारीगाम के लिए, जो कि उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि पहली पारी में डॉट्स ज़्यादा हमें देखने को मिली। बड़े हिट्स के लिए जा रहे थे वहाँ बल्लेबाज, और आरके लॉयंस ने 80 रन बनाए हैं इस इफ्तिताई मुकाबले में। और निसार साहब, यहाँ इस विकेट पर ना आज 2-2.5 साल के बाद ये मैच नई विकेट है। बड़े टाइम से यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही है, इसीलिए ना वो बाउंस इवन नहीं है। और अब ये टॉस जीतकर
जो बॉलिंग का फैसला किया, मैं समझता हूँ कि ठीक फैसला था ये आके यूनिस का, और उन्होंने कहा कि हम पहले देखेंगे पिच किस तरह का बिहेव करेगा। अगर दिमाग से खेलेंगे तो मैं समझता हूँ समझदारी से खेलेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करेंगे जैसे आज़ाद साहब ने कहा, क्योंकि आपके पास ना सेकेंड इनिंग में एक टारगेट होता है, उसके लिए कैलकुलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको संभल कर बैटिंग करनी है। अगर मैं ये 10 ओवर्स की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर दिमाग से खेलेंगे तो आसानी के साथ चेज डाउन करेगी, लेकिन क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है। एक अच्छी गेंद ना एक बल्लेबाज को बाहर भेजने के लिए काफ़ी है। तो जब सलामी जोड़ी उतरेगी फिर आलविन बारीगाम की इन रन्स का पीछा करने के लिए, और जान लगा कर अब बॉलिंग करनी होगी आर.के. लंशिया की टीम को। तो मिलेंगे आपके साथ ठीक 5 मिनट के बाद। टिल देन बाय बाय।
Thank you very much, and we're back with the chase. Second innings of this inaugural clash of Parigram Premier League, where it's going to be the local team Fida 11 Parigram to start the chase. 81 is what they're chasing in their allotted 10 overs. Not a big deal for them. The top order absolutely comes with some real sweet connections. So let's see, get the confirmation of the two opening batters. It's going to be Khurshid Mir and Muhsin Nazir. Muhsin who had a good time with the ball. But Khurshid is known for his blistering and blissful knocks, especially when it comes to that T20 cricket. And he's a special player, special opener for his side in Parigram. And Arkeline check. They will be just looking for that wickets in the power play to try and have a proper control in this defense of the chase. It's going to be MD Faisal, who had a good cameo in the last over, was able to just score some quick fire. A 6 and a boundary. And meanwhile there is a bit of caution being asked that there was one run short, so might be the total will have to go and carry forward to 82. Let's see how the proceedings we have here at inaugural clash of Parigram Premier League at MCG Parigram. Keeper slips, gully, point, covers, mid-off, extra cover remains vacant, mid-wicket inside, filing up on the circle, long gone, and a deep squaring in position. First ball from MD Faisal, he goes to Khurshid. And he goes full. That's what Khurshid was looking for, just dragging it and just playing it onto the onside, because you could have just taken the full use. Just opening the flays for the bat, and you could have driven it straight to that covers, because I could see a big gap on that region. And crowd are loving this inaugural clash. They're on the toes, coming here in huge numbers. I could see especially those small kids. And Apesh not having a proper control. And off the mark straight away on the ball too. And at this moment, even though we have that bits going on in the auction of the IPL, and our star from Baramulla, Mr. Aqib Nabi, he is yet to come at his position of auction. He just got that number 46, I believe. So we expect that he does get a very proper bid. And he goes over the top, and it's a no ball as well. Overstepping, and Muhsin Nazir just crashes it over that cover field for 4 runs. First boundary of the chase and the first no ball of the chase as well. This will make this side of Parigram quite, we believe, into that confidence of just getting a good start in the chase. Lovely, that's gone over long off. This is what we call full advantage of the license. And I believe when you have got the license and you are a driver of your team, you definitely would love to take for a long drive. And that's what this man Muhsin Nazir did. A special drive on the long off. That is a sweet start. A dozen on the board for the local team, and Arkeline check under some treatment. And keeping low outside off stump at this moment. Coming back to that number of runs you got to require as a team in the chase. This is just fraction over 8, and you are already 12 on the board with 2 balls to go. So that's where something as a batsman you got to try and just keep understanding quite well. Goes for a Suku again, even though caught, but second time overstepping, and he cannot be just loving and liking it all. It's disappointment for the side.
Eventually, can you believe it? Arkelina check. They are disheartened, disappointed. It could have been a first blow and it could have been Mohsin Nazir caught for the fine leg, but once again overstopping and called as a no ball. And the free hit will be to Khurshid Mir now. I would be loving to just push it for too many. Takes it on the full, hits it straight, and hits it one bounce to the left of that long gun, standing a bit wide, and the ball wins the race, beats him quite quick. It's boundary to Khurshid, and this is what we call a dream start. 12 and a half on the board with one ball to go. So seriously, Arkelina check. They are absolutely what we call on a check. एक और चौका, कवर और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से गेंद को निकाल दिया। फुल टॉस थी और बड़ा खूबसूरत इलाज। तो पहले ओवर में 22 रन बने। कमाल की शुरुआत मिलती, तेज तरीन स्टार्ट दिया है दोनों ही बैटिंग ओपनर्स ने। मैं बात कर रहा था निसार साहब, पहली पारी में जब ये जोड़ी उतरी थी ना, मैंने आपको कहा था कि दोनों में दमखम है, बैटिंग बढ़िया करते हैं। लेदर के कमाल के बल्लेबाज से दोनों शुरुआत करते हैं लेदर में, और डिक्सन बॉल में भी एक ड्रीम स्टार्ट फराहम किया है इन्होंने अपनी टीम फिदालविन पारीगाम के लिए। तो पहला ओवर ठीक ठाक रहा बैटिंग टीम के लिए, चेज करने वाली टीम के लिए, और 81 रन्स को डिफेंड कर रही है। लेकिन अभी तक पहले ओवर में ना 22 रन बने हैं, तो बहुत खराब शुरुआत मिलती हुई गेंदबाजी से। और गेंदबाजी में अब शफकत को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। शफकत पहली गेंद करेंगे, अंदर आती हुई गेंद जिसे कि कट करने गए थे, लगभग गेंद हाथ को सीधे लगी। मोहसिन नजीर के मोहसिन नॉट आउट 11 रन बनाकर। और पहले ओवर में 2 नो बॉल समय देखने को मिली। एक पर मौका तो बनाया था एमडी फैसल ने। यही फर्क था पहली पारी में बल्लेबाजों में। लेग दिखा, टाइम बढ़िया किया एक बार फिर। गेंद की विडो फील्डर के सर के ऊपर से 1 बाउंस के साथ ही 4 रनों के लिए रनों की बूछाड़ हो चली है। दूसरे ओवर में 26 विकेट अभी तक कोई गिरा नहीं है। चौका था 1 बाउंस। 15 पर मोहसिन 200 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं। 55 ही चाहिए अब। शफकत की अगली गेंद पर डाउन द पिच आकर मिड विकेट पर गेंद पहुंची, तेज थ्रू, अननेसेसरी कहना चाहिए, और ओवर थ्रो के चलते अब रन्स मिलेंगे। तीसरा भी पूरा कर लिया। ये दोनों ही अपने सकलेन साहब गेम में रखा ही नहीं शुरुआत से ही आरके लॉयंस चक की टीम को। और बिल्कुल, और गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लेग गेंदें ज़्यादा कर रहे हैं, आगे गेंद कर रहे हैं, और इसीलिए आसानी हो रही है बैटर्स को शॉट खेलने में। इंटेंशंस तो जाहिर साफ नज़र आ रहे हैं, और इंटेंशंस ऐसे ही होनी चाहिए। और रन्स बहुत ज़्यादा बना लिए है इस बार, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते हैं इस गेंद पे कोई नहीं। लेकिन शुरुआत देखी ने बहुत बढ़िया शुरुआत मिली है। 29 रन अभी तक बना चुके हैं 1.5 ओवर की गेंदबाजी में, और इससे अच्छी शुरुआत और होम क्राउड के सामने क्या ही मिल सकती है आपको। चले एक और गेंद के साथ इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, और 1 रन जरूर मिल जाएगा। और इसी के साथ 30 मुकम्मल 2 के बाद बढ़िया शुरुआत मिली है। तो पार्टनरशिप भी 30 रन की बन चुकी है। 14 गेंदों से मोहसिन नजीर 18 8 गेंद खेलकर, और क्राउड को आप देख सकते हैं इन मिट्टी के चट्टानों के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं। विंटर्स चल रहे वादी के अंदर, और क्रिकेट नहीं रुकती है। विंटर्स में भी डिक्सन बॉल, लेदर बॉल या फिर विंड बॉल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, और ऐसे में अच्छे नज़ारे, अच्छे विजुअल्स। ये छोटे छोटे बच्चे, ये 3-4 दोस्त ना एक साथ बैठे हैं, मन बनाया है काफ़ी ऊपर बैठने का, और ऐसे में अच्छा व्यू होगा वहाँ से यकीनन। फिदालविन बढ़िया शुरुआत मिलती हुई। 2 ओवर में 30-15 की औसत से रन्स बने हैं, और गेंदबाजी में पहली तब्दीली ये तो सकलेन साहब करनी ही थी, क्योंकि एमडी फैसल का पहला ओवर 22 रन उसमें बने। और ये जो बॉलर है ना, ये तो तुर्फ का इक्का है, कमाल के क्रिकेटर लेदर के। उसके अलावा डिक्सन का भी बढ़िया अच्छे आंकड़े हैं इनके। बासित छोटू के नाम से काफ़ी मशहूर है बासित। पहली गेंद उन्होंने डॉट कर दी है। खुर्शीद मीर तैयार सामना करने के लिए। इनसाइड आउट स्ट्रोक, ये तो तकिया कलाम है खुर्शीद मीर का। फ्लैट 6 ओवर कवर। गेंदबाज कोई भी हो,
सकलेन साहब नतीजा वही छक्के और चौके। गलती करने पे मजबूर कर रहे हैं। देखिए थोड़ा बहुत विकेट्स को एक्सपोज किया था ताकि इनसाइड आउट स्ट्रोक खेले। जब कॉन्फिडेंस होना आपके पास तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो गेंदबाजी इससे पहले आपने डाली थी, लेंथ गेंद ज्यादा की और फिर बैट स्विंग भी बढ़िया नजर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी पीछे गेंद करनी होगी। देखिए ये अच्छी गेंद है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो फिर गेंदबाज आप पे हावी हो गए। इसलिए बैटर कोशिश करे कि कोई गेंदबाज सटली ना हो, इसीलिए ऐसे इंटेंशन नजर आ रहे हैं। 36 बगैर किसी नुकसान के इस ओवर में 6 लगा और पहले विकेट की अभी भी तलाश है यहाँ आरके लंचक की टीम को, जिन्होंने पहले बैटिंग की, टॉस हारकर 80 रन बनाए। 81 रन का है टारगेट, उसमें 14.5 की औसत से रन बन रहे हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, ये डाउन द पिच आकर उठाकर मारा है। 6 नंबर सेकंड फॉर मीर खुर्शीद। पारीगाम बॉय कमाल की शुरुआत फरहम करते हुए होम ग्राउंड में। ये सकलेन बचपन से इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट खेली है, पता है इनको किस तरह से खेलना है। बहुत टाइम के बाद ये क्रिकेट की बाहर आई है पारीगाम के इलाके में। 42 हो गया है स्कोर। बासित ये नो लुक फ्लिक, लेकिन वन बाउंस। ये बासित ना बड़े नाखुश लग रहे हैं और ये बॉलिंग ना बड़ी कमजोर दिख रही है सकलेन। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जिस प्रकार की अभी तक गेंदबाजी रही है और बल्लेबाजी रही है, साफ तौर पे ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया है। हालांकि आपको नए शुरुआत करनी होती है चाहे, और रैप खेलने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे खिलाड़ी जा रहे हैं, नहीं रोक पाएंगे और एक के दूसरे की मांग है और दूसरा रन भी मुकम्मल किया है। और ऐसी अगर मैं बात कर रहा था कि एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, देखिए आप चाहे फाइनल जीते कोई भी, हमेशा नया दिन होता है, नया मैदान होता है, नए स्ट्रेटजी के साथ आपको मैदान में उतरना होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा जो त्राल से टीम आई है और वो ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया, उनको लगा था शायद हम इजीली यहाँ से जीतेंगे। बट क्रिकेट एक ऐसी गेम है जहाँ पे आपको उस प्रकार के सेंसेस दिखाने होंगे। आप लाइटली लेंगे ना, डिसरेस्पेक्ट करेंगे गेम की, वो आपको बहुत चुभ सकता है। तो आरके लंचक की टीम काफी दबाव में है और दबाव को झेल नहीं पा रही है, क्योंकि ये क्रिकेट का जो खेल है ना, ये हिसाब और तनाव की लड़ाई होती है। इसे जो झेलता है वही आगे निकलता है और अभी तक बढ़िया झेला है। ये टॉस जीता, सिक्का जो उछला ना गिरा था पक्ष में आके भी उन्नीस और उन्होंने चेज करने का फैसला किया। कहा जब बाबा निसार ने उनसे पूछा कि आपने क्यों बॉलिंग करने का फैसला किया, उन्होंने कहा कि नया पिच है, बड़े टाइम के बाद यहाँ क्रिकेट फिर से वापस आई है, पहला मैच है, किस तरह से विकेट खेलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, इसीलिए देखेंगे पहले। लेकिन ये दोनों ही प्लेयर्स ना आज मन बना कर आए हैं, कातलाना मूड में दिख रहे हैं। तो 3 ओवर के बाद ना 45 रन बने हैं, 15 की औसत से रन बन रहे हैं। आजाद साहब, मैंने कहा था कि ये रन्स उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि होम ग्राउंड है। लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है 81 रन डिफेंड करना। जी उमर भाई, लेकिन जैसे सकलेन भाई ने बात की अभी, क्या जो त्राल की टीम है, इन लोगों ने इस स्कोर को भी अब लाइटली ले लिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है कि उनकी फील्डिंग उतनी अप टू द मार्क नहीं रही। जैसे कि अगर हम पारीगाम की बात करें, और सिवार उठा के मारा है फाइनल के ऊपर से 6 रन, खुर्शीद के बैट से एक और छक्का। और अगर इस मैच की बात करें तो पारीगाम ने इस मैच को वन साइडेड कर दिया है। मुझे लगता है बस 1-2 ओवर में मैच फिनिश हो जाएगा। जी उमर भाई, वही बात मैं कर रहा हूँ कि होम ग्राउंड हमेशा होम को ही सपोर्ट करता है, चाहे क्राउड की बात हो या फिर विकेट की बात हो। लेकिन कभी कभार जब अपोजिट टीम क्रिकेट अच्छा खेलेगा तो होम ग्राउंड भी हार जाता है। इसी बीच गेंद हवा में, फील्डर नीचे, एक और विकेट। पहला विकेट पारीगाम ने खो दिया है 52 के स्कोर पे 3.2 के बाद। खुर्शीद की वापसी पेविलियन में। लेकिन उमर में मुझे लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, गाड़ी अब निकल चुकी है। अब त्राल को शायद अब जल्दी ये भेजेंगे घर। दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, बहुत ज़्यादा दूर है। एक चीज़ जो मैंने इस मैच में सबसे ज़्यादा नोटिस की है, वो मैंने देखा कि माइंडसेट, पारीगाम का माइंडसेट पहले से यही था कि अपोजिट टीम को मतलब
कम स्कोर पे रोके। एक तो उन लोगों ने उसमें भी कामयाब हो गए। अब जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो दबाव उनके बॉलर्स पे लाया, लेकिन बॉलर करेगा भी क्या जब फील्डर ने साथ नहीं दिया। एक और विकेट, 2-2। क्या लगता है उमर भाई, वापसी हो सकती है त्राल के लिए? देखिए आरके लॉरेंस चक के लिए ना डिफेंड करने के लिए रन्स जो है ना अभी भी 36 है मेरे ख्याल से। अभी स्कोर अपडेट होगा, लेकिन यहां बड़ी जबरदस्त यॉर्कर डालकर यासीन को क्या बोल्ड। बैटिंग में गहराई है ये तो मानना पड़ेगा, अच्छी बैटिंग अभी भी बची हुई है 30 और गेंदें बहुत है बची हुई। आजाद साहब 29 रन्स की जरूरत है, गेंदें 39, क्योंकि ये दोनों ओपनर्स ने ना लगभग गेम से बाहर कर दिया है। लेकिन अच्छी खबर ये कि मोहसिन नजीर दूसरे एंड से खड़े हैं, वो सेट है, 9 पे 20 बनाए। और T10 की अगर मैं बात करूं जो आपने शुरुआत दी है, मुझे लगता है वो काफी है। हालांकि मैं कहूंगा कि कमबैक आप कर सकते हैं, लेकिन गुच्छे में विकेट हासिल करनी होगी, तभी मैं कहूंगा कि आप कमबैक कर। हालांकि आपने 1-2 विकेट जरूर हासिल किए, लेकिन दूसरे एंड से मोहसिन खड़े हैं। अगर आप गुच्छे में विकेट हासिल करेंगे ना तो फिर आप कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए गेंदें बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नेशनल गेम से आप जीत सकते हैं, मैक्सिमम टाइम्स पे आप ऐसा कुछ नहीं। आप लोकल क्रिकेट में वो पेशेंस लेवल कम देखते तो फिर आप यहाँ पे रैश शॉट के लिए जा सकते, लेकिन अदरवाइज बिल्कुल ही नेशनल गेम है। यहाँ से स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, पीछे खिलाड़ी है, एक मिल जाएगा। अगर नेशनल गेम यहाँ पे खेलेंगे तो मुझे लगता है आराम से जीतेंगे। 28 रन तो बनाने हैं, लेकिन कभी कभार आप हीरो बनना चाहते हैं लोकल क्रिकेट में, तो आप बड़े शॉट के लिए जाएंगे, उसमें आप विकेट भी गंवाएंगे और फिर अपनी टीम को बैकफुट पे भी लाएंगे। देखिए गेम अब बन चुका है फिलहाल पारीगाम के लिए, अब सेंसिबल खेलना होगा। लेकिन जो बैटिंग करने के लिए अब आए हैं ना एजाज किंग, इनके आंकड़े कमाल के हैं। चाहे आप विन बॉल की बात करें या फिर डिक्सन बॉल की, आकाश को बॉल की, किंग इसको इसीलिए कहते हैं। पारीगाम के 2 किंग बशारत और दूसरे विन बॉल के, विन बॉल का गजब का खेलते हैं। ये बुरवन में लास्ट टाइम इन्होंने 6 छक्के लगाए थे 1 ओवर में, लेकिन ये डिक्सन बॉल उससे डिफरेंट होती है। उठाकर मारने की कोशिश, मैं समझता हूं कि ये सिंगल्स का गेम है पारीगाम के लिए। अगर आप दिमाग से खेलेंगे तो 36 गेंदें अब रह गई है, लेकिन हमारे स्कोरर ने अभी एक गेंद ऐड नहीं की है। एक गेंद का अभी भी लगभग आना बाकी है। जी हाँ, अब जाकर अंपायर आरके लॉरेंस चक के इस यंग फास्ट बॉलर सलमान जावेद को बता रहे हैं मोहसिन नॉट आउट 20 रन बनाकर। ये दोनों ही ओपनर्स ने ना तबाहकुन बैटिंग की, इसीलिए फ्रंट फुट पर है। अभी भी 13.83 के औसत से रन बन रहे, विकेट गिरे बैक टू बैक इस ओवर में। लेकिन रन्स अगर मैं बात करूं, पहले ही वाइड हुई थी, उसके बाद 6, अब सिंगल, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। और किसी भी फॉर्मेट में आपको ना 2 चीज एक साथ करनी है यहाँ से। अगर मैं आरके लॉरेंस चक की बात करूं, विकेट भी हासिल करने हैं और रन भी रोकने हैं। और तभी होगा ना जब आप लगातार डॉट गेंदें खिलाएंगे, तभी तो बैटर मजबूर होगा बड़े शॉट पे। ऐसे तो दबाव बनेगा नहीं, अब आराम से उनको सिंगल रोटेट करने देंगे तो काम बन जाएगा उनके लिए। इसीलिए सबसे पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए डॉट गेंदें ज्यादा खिलाए। बैटर मजबूर होगा, फ्रस्ट्रेशन बैटर पे नजर आती है जब आप 2-3 गेंदें डॉट करेंगे। फिर बड़ा शॉट जब वो खेलेगा तो डायमेंशंस बड़े, उसमें आपको विकेट मिल सकती है। और वही से बैटर्स की अगर मैं बात करूं, कॉमन सेंस वाली बात है। नेशनल गेम में आप यहां पे रोटेशन कर सकते हैं, अब उन पे डिपेंड करता है किस माइंडसेट के साथ खेलेंगे। तो ये स्कोरर ने शायद गलती कर ली थी। अब जाकर ओवर पूरा दे दिया गया है। जी हां, इसीलिए नए बॉलर आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 5वें ओवर में 36 है गेंदें, रन है 28। ये जीत के बिल्कुल करीब है फिलहाल 11 पारीगाम की टीम, और कोई मौजूदा ही अब बचा सकता है आरके लॉरेंस चक की टीम को। चमत्कार करना होगा, यानी कि आपको 2-3 विकेट ना 1 ओवर में हासिल करने हैं लगातार। लेकिन मोहसिन नजीर एक सेट बैटर है, और मोहसिन नजीर अब स्क्वायर लेग पर अंपायर के पास पहुंचकर उस आखिरी गेंद को के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसी के बारे में डिस्कस हो रहा है। मोहसिन का मानना है कि अभी भी ये गेंद आनी बाकी है, लेकिन मोहसिन को अब बताया गया है कि ओवर पूरा हो गया है। विंड बॉल में ना प्लास्टिक बैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वुड, लेकिन ये डिफरेंट होता है। जिस तरह से आप लेदर में यूज बैट करते हैं, वेट भी काफ़ी कम होता है। मैं विंड की बात कर रहा हूँ, उसमें प्लास्टिक बैट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डिक्सन या कॉस्को में वुड का ही बैट आप इस्तेमाल करते हैं, लाइट वेट। अब 5वें ओवर में पहली गेंद बहुत ही बढ़िया ब्लॉक कॉल में डाली हुई, और इसे मोहसिन ने बैक टू बॉलर वापस खेला, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील किया गया। 35 गेंदें 27 रन।
इस बार बच गए बाल आड़े बैट के साथ लेग साइड में मारने की कोशिश की मोहसिन नज़ीर ने, और इसीलिए इजाज किंग बता रहे हैं कि इससे पहले तो आप सीधे बैट का इस्तेमाल कर रहे थे, आप संभल कर खेले। जीत बिल्कुल नजदीक है, 27 रन दूर है जीत से। किस्मत ने दिया साथ, ये दन दना कर निकल गई है गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। अब इस चौके के बाद ना सकलेन साहब इक्वेशन और कम हो गया है, 58 हो गया है स्कोर, अब 23 ही बचे हुए हैं आरके लॉन्चक के लिए। कोई मिरेकल ही उनको यहाँ से जिता सकता है, और मिरेकल बार बार होते हैं नहीं। देखिए इससे पहले आपने दबाव बनाया था 2 गेंदों में, गलती की थी वहां पे बड़े शॉट के लिए। ऐसे ही दबाव अगर आप बनाएंगे तो गलती कर सकते हैं बैटर, अदरवाइज तो आप दूर दूर तक इस मैच में है नहीं। हालांकि जो विकेट्स आपने 2 हासिल किए वहां से दरवाजा खुल सकता था आपके लिए, लेकिन फिर आप पे डिपेंड करता था कि आप उसमें एंटर होना चाह रहे हैं कि नहीं। ये अच्छी गेंद है, कवर्स की तरफ खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, और जो रन है ना वो काफी कम है। उसमें आप अगर आप चाहेंगे थोड़ा सा डीप ले जाए फिर तो काम बनेगा नहीं, गेम को डीप ले जाएंगे काम बनेगा नहीं। आपको चाहिए लगातार अंतराल पे विकेट्स हासिल करें, वो भी 2-3 विकेट्स हासिल करें तो आप कमबैक कर सकते हैं। स्ट्रेट बैक टू द बॉलर खेला, रन यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी बैटिंग में गहराई है, बहुत सारे खिलाड़ियों का आना बाकी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि डीप ले जाएंगे तो फिर काम बनेगा नहीं, इसलिए आपको पहली फिनिश करना होगा तो आपके लिए बेहतर है। आखिरी गेंद इस ओवर की, पोल किया इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट, लेकिन शिकरले का फील्डर पीछे था, उन्होंने गेंद को फील किया, तो 5 रन बने इस शफकत के इस ओवर से। 5 ओवर के बाद 59 फिदा 11 का स्कोर। होम ग्राउंड में पहला मुकाबला खेल रही है मेगा इवेंट T10 डिक्सन बॉल पारीगाम प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का 64 टीमें खेल रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। एंट्रीज अभी भी ऑन है, अगर आप ख्वाहिशमंद है, अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 5 की फी है इस टूर्नामेंट का, 1.5 लाख के आसपास आपको विनिंग अमाउंट मिलेगा अगर आप विनर्स रहते हैं। अगर मैं डिक्सन बॉल की बात करूं, ये ज़्यादातर खेली जाती है ज़िला पलोमा के अंदर त्राल के इलाके में, बटगुन प्रीमियर लीग या फिर नूरपुरा प्रीमियर लीग या डाडसरा प्रीमियर लीग, लेकिन अब जाकर पुलवामा भी डिक्सन बॉल पहली बार ये मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है। बढ़िया ट्राई लॉन्ग ऑफ की तरफ, गलती कर ली फील्डर ने, आसान सी फील्डिंग थी उनके लिए, और ये दबाव है सकलेन साहब और कुछ भी नहीं। अब दबाव बहुत कुछ आपसे कराता है, अदरवाइज बॉडी पीछे होना जरूरी था वहां पे, स्लॉपी फील्डिंग कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए रन्स कम है, उसके लिए आपको उस प्रकार के वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी, उसके लिए आपको दबाव बनाना होगा। आप खेलना चाह रहे हैं यहाँ पे और निकल गई गेंद बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए, एक और चौका। अब यहाँ से मैच जीतना नामुमकिन सा लग रहा है कि रन कम बचे, आपको यहाँ पे 2-3 विकेट हासिल करेंगे तब मैच बन सकता है, अदरवाइज मुझे लगता है मैच जीतने के चांसेस लगभग 5% के आसपास बचे हैं। मोहसिन और खुर्शीद ना आए आज शुरुआत करने के लिए, बल्कि जीतने के लिए आए हैं। लग तो वही रहा है जिस हिसाब से बैटिंग हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है बॉलर्स के साथ, और ये पिछली गेंद पर क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला, जो कि काफी खेली जाती है T10 या T20 में। अब समझदारी दिखा रहे हैं, यही तो करना है। अब अभी तक तो आपने अच्छी क्रिकेट खेली है, अब संभल कर खेल रहे हैं, मैच तो बन गया है। इस ओवर में 2 गेंदों पर 2 चौके। ये फील्डिंग की आप बात कर रहे थे सकलेन साहब, देखिए फील्डिंग में ना एक टेक्निक का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीम के पीछे आपको शरीर ना पहले लगाना है, क्योंकि अगर मिस फील्ड भी होगा तो शरीर पर गेंद आएगी। ये किंग का उठता हुआ शॉट हवा में है, अभी तक हवा में, और क्या है, और इस बार किंग का कैच छोड़ा गया लॉन्ग ऑन डीप में, लड्डू जैसा ये कैच था। इस तरह का कैच लेना चाहिए था आपको, बहुत ही आसान सा ये कैच था, आप पकड़ सकते थे, लेकिन रिवर्स कप में आप पकड़ सकते थे, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया, मुझे लगता है साफ तौर पे दबाव महसूस करा, अदरवाइज ये बहुत नॉर्मल सा कैच था। दबाव आपसे बहुत कुछ कराता है, और जब आप दूर भी जाते हैं खेलने के लिए, इस बार खेला स्क्वायर की तरफ, क्या इस बार गलती हो जाएगी? जी नहीं, इस बार पकड़ लिया है और वापस जाना पड़ेगा यहाँ पे एजाज को, लेकिन दूसरे एंड से मोहसिन खड़े। अब 13 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, अगर ऐसा कुछ पहले किया होता तो शायद मैच बन सकता था, हालांकि अभी भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 विकेट्स और हासिल करने होंगे, अदरवाइज 13 रन ही तो यहाँ से चाहिए। अगर आराम से रोटेट करेंगे तो फिर आराम से जीत सकते हैं। हीरो बन सकते हैं वो, कोई ऐसा गेंदबाज हो सकता है जो एक ओवर में 2-3 विकेट्स
अगर हासिल करे तो हीरो बन सकते हैं, बट आज वो टीम की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, त्राल से जो आया खेलने के लिए वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया, पहली गेंद से वो ऐसा कुछ नजर आया, और इसीलिए अब मुझे लगता है वो रिजल्ट से दूर जा रहा है। अगर हार का सामना करना पड़ सकता है यहाँ से उनको, अगर वो गेंद को मेरिट पे खेलते, जहाँ पे रोटेशन थी वहाँ पे रोटेशन करते, अच्छी क्लीन बॉल कर दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कमेंटेटर कर्स, क्या वैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा यहाँ से? कैप्टन आकिब यूसुफ पहली गेंद पर बोल्ड हो गए, 52 पर गिरा पहला, 52 पर दूसरा, निसार साहब 68 पर तीसरा, 68 पर ही चौथा। ये भी हैरान करने वाली बात है। देखिए, अगर आप 81 रन्स को डिफेंड कर रहे हैं ना सकलीन साहब, आपकी शुरुआत बॉलिंग में काफ़ी ज़रूरी है, अच्छी शुरुआत आपको देनी होगी, विकेटें आपको चटकानी होगी। मैं समझता हूं कि दो ओपनर्स ने ना बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, क्योंकि 52 पर पहला विकेट गिरा, उसके बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो ओपनर्स ने बनाया उसका फ़ायदा नहीं ले रही है यहाँ पे आने वाले बैटर्स, आई मीन मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। तो अगर वहां विकेट मिल जाती एक ओवर में, दूसरे ओवर में, और पहला ओवर काफ़ी महंगा रहा था जिसमें 22 रन बने थे, और वहां ही दबाव आ गया आरके लॉयंस चक की टीम को। लेकिन आरके लॉयंस चक के जो बॉलर है ना, उनका मानना है कि वो हार मानने को ऐसे में तैयार है, और माननी भी नहीं चाहिए। आप एक एक रन के लिए उनको तरसाना चाहिए, तभी तो आप एक अच्छी टीम मानी जाती है। देखिए, अगर आप पहले जो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो ड्रूपिंग नजर आ रही है, आपको आखिरी गेंद तक लड़ना चाहिए। देखिए, रिजल्ट तो दूसरी बात है ना, हम रिजल्ट की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको गेम की रिस्पेक्ट करना होगा, आपको एक एक रन के लिए तरसाना होगा, तभी आपके लिए अच्छा होगा। आने वाले मैचेस की, खासतौर पर दूसरे टूर्नामेंट्स की अगर मैं बात करूँ, वो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बेस बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे मैं बल्लेबाजों की बात करूं, गेंदबाजों की बात करूं। देखिए, अगर आपने 10-12 रन कंसीडर किया होते तो शायद वो 20-12 रन और एक्स्ट्रा हो जाते हैं यहाँ से, लेकिन आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। अब आपको यहाँ से एक काम करना होगा, जो यहाँ पे आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी, उससे आप रन्स भी सेव कर सकते हैं और वो दबाव भी बना सकते हैं। चले दूर वाले चोट से, ये अच्छी गेंद है, थोड़ा सा मिश्रण भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। डिक्सन की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मिश्रण कर सकते हैं, हालांकि स्विंग उस पर करके ज्यादा आपको मिलेगी नहीं, एयर स्विंग देखने को मिल सकती है, बैक ऑफ द हैंड स्लोअर का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे सोच वही होनी चाहिए, लगातार डॉट गेंदें खिलाए, अभी हिम्मत हारनी नहीं होगी यहाँ से, तभी एक अच्छी टीम आप मानी जाती है। चले एक और गेंद के साथ, इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से खेल दिया है, 6 मिल जाएंगे फिर से, बढ़िया शॉट, लेकिन इनके सामने आज लाइन गेंदें ज्यादा हुई है, इनके सामने गेंदबाजी उस प्रकार की हुई नहीं, और मोहसिन ने उसका फायदा उठाया है। ये मोहसिन ने ना तुमलबहाल में अपना लोहा मनवाया, लेदर में बैक टू बैक टर्न इनके नाम तुमलहाल प्रीमियर लीग के अंदर, और यहाँ डिक्सन बॉल में भी वो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं होम ग्राउंड पर, होम क्राउड के सामने। 41 रन का स्कोर, 74 रन बने हैं। इनिंग का ये 7वां ओवर चल रहा है, अब 7 रन ही चाहिए मैच को जीतने के लिए। लोन वसीम बॉलिंग कर रहे हैं, स्पार्शियल ओवर, और गेंद को लगभग चक शॉट खेला, खाली इलाके में जाकर गेंद गिरी, 1 रन मिल गया। ये फैंस काफी खुश लग रहे हैं फिदा 11 पारीगाम के। पहले खुर्शीद ने कमाल की बैटिंग की, गेम से बाहर कर दिया आरके लॉयंस चक की टीम को, और बैक टू बैक विकेट गिरे। इससे पहले पहला गिरा 52 पर, दूसरा भी 52 पर, तीसरा 68 पर, चौथा भी 68 पर गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी बैकफुट पर नजर आ रही है आरके लॉयंस चक की टीम। अब लोन वसीम ने राउंड द विकेट आने का फैसला किया शौकत के सामने। बड़ी जबरदस्त गेंद मिडिल स्टंप पर आ रही थी, और गेंद टांग पर जाकर लगी बल्लेबाज के। 19 गेंदें, 6 रन, नहीं हारना चाहिए ये मैच अब फिदा 11 पारीगाम की टीम को, बल्कि सिंगल डबल के साथ ही ये मैच आप जीत सकते हैं। गेंद हवा में यकीनन गिरेगी खाली इलाके में, और शौकत के पहले रन्स फाइनल मैच में वो इसी के साथ अफदमाक हो गए। तो 7 ओवर के बाद 77, 4 विकेट के नुकसान पर ये 81 रन का जो टारगेट है ना, उतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है अब फिदा 11 पारीगाम के लिए, क्योंकि गेंदें अभी भी 18 है। तो मैं समझता हूं कि 8वें ओवर में मैच फिनिश होगा। और बिल्कुल, और 4 ही रन, मैंने पहले भी कहा था कि जब 2-3 विकेट के मैच, अभी भी मैं कहूंगा कि आपने उस प्रकार का कमबैक किया नहीं है, क्योंकि रन्स काफ़ी कम थे, तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ से। उसके लिए आपको और मेहनत करनी थी, वो अच्छी कैचिंग हो सकती थी, वो अच्छी ग्राउंड फील्डिंग हो सकती है, आपने वहाँ पे आप लैग कर गए।
और नो बॉल्स भी आपने काफ़ी ओवरस्टेप कर गए वहाँ पे, और उसके कारण वैसा कुछ हुआ। अदरवाइज आपके पक्ष में रिजल्ट आ सकता था अगर आप उस प्रकार की मेहनत करते। अब ज़्यादा रन नहीं चाहिए, 4 ही रन चाहिए, तो उससे आपको यहाँ पे एक सीख मिलती है कि आजकल की क्रिकेट में आप वो चीज़ लैक नहीं करते। अगर कोई फील्डर वैसा नहीं हो तो आप उसको नहीं छुपा सकते। पहले ज़माने में वैसा होता था, लेकिन आजकल आपके जो भी खिलाड़ी है उस प्रकार के फील्डिंग अच्छी यॉर्कर थी। अगर आप अच्छी फील्डिंग करेंगे ना तीनों डिपार्टमेंट में, तभी आप एक अच्छी टीम मानी जाती है। हालांकि अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो, फील्डिंग अच्छी हो, तो फिर किस काम की, चाहे आपने कितना भी टारगेट सेट क्यों ना किया हो। ये बॉलर के लिए ना, जब तक विकेट कीपर और फील्डर साथ ना देना, विकेट लेना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बॉलर का काम होता है चांस बनाना, और उसको लेना होता है काम वहां फील्डर का। डाउन द ग्राउंड के 6 के साथ फतह। पारीगाम फेदालेवन ने इनॉग्रल मुकाबले में हराया आरके लायंस चक की टीम को 6 विकेटों से, और विनिंग शॉट निकलता हुआ मोहसिन नजीर के बैट से, और मोहसिन बन गए मर्द मैदान। 48 रन की उन्होंने ये मैच विनिंग पारी खेली नाबाद जस्ट 25 गेंदों से, और 2 विकेट भी उन्होंने हासिल कर ली है। मुनिमिन कांग्रेचुलेशंस, और ये चेज डाउन रन्स कर लिए 90 ओवर में। निसार साहब क्या कहोगे आप आरके लायंस चक के लिए? Well, I would say this is what we call home dominance. Home team at this home ground and just bringing this inaugural clash, into the kitty. And absolutely, it has been, the team game. It has been the team efforts. And early at the toss, we were quite strange because winning toss and bowling first. But captain did mention on the toss that it's a quite new wicket. Not cricket was being played on this venue for the longer version of time. So let's see how it goes. And eventually, it came up quite nice to them, finishing this inaugural clash with a victory. And ultimately, we have that guest team all the way from Linus Chakral, and they are out there in the center as well. But eventually, I would say a perfect victory and a perfect start to this Paribam Premier League with the home team. So they look and they come up with a message to the rest of the teams in this entire tournament that we are on, and you are not going to have it quite easy from our hands, because we belong to Parigam, and maybe this title belongs to the Parigam as well.